Dear student, good morning all of you. Welcome to Gyan Bharati Junior College of Science. In the previous session, before Diwali, we have started here the superposition of the waves. And in that chapter or topic, we have seen the many properties regarding the waves and the properties of the medium which transfers the wave through it. So here, the superposition of waves is nothing but the way two or more waves arrive at the point of the medium simultaneously. Suppose this is the point of the medium, आणि या पॉइंट वरती एक किंवा एक पेक्षा जास्त म्हणजे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेव्स काय असेल अराइव होत असेल. when two or more wave arrive at a point of the medium simultaneously, then each wave produces its one displacement at that point independently of the other. Means what is here? यहाँ पे एक जो पॉइंट है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेव क्या होगी, अराइव होगी सायमल्टेनियसली. आणि प्रत्येक वेव त्यावरती काय होता आहे की आपलं डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता आहे. अशा पद्धतीने की दुसरी वेव काय आहे, absent आहे. In such a way that the other wave is absent. The resultant displacement at that point is nothing but the vector sum of the displacement produced by the each wave. मग अशा वेळेस काय करायचं आपण, अशा वेळेस जे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट येईल ते किती येईल, ती वेक्टर सम एवढं येईल. वेक्टर सम कोणाचा, त्या प्रत्येक वेवने किती डिस्प्लेसमेंट केलं आहे त्याची प्लस होईल, त्याची ॲडिशन होईल, त्याची सम होईल. तर ते होईल काय माझं सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. when two or more wave arrive at a point of the medium simultaneously, then each wave produces its one displacement at that point independently of the other. Then the resultant displacement at that point is nothing but the vector sum of the displacement produced by the each wave. This is called as the superposition principle. So in the last lecture, in the last period, we have seen here the wave having the equation that is the same phase and different amplitude. Same phase and different amplitude. So now here amplitudes are amplitude of wave. This is the point. So now consider here the wave which having the displacement along the y-axis. Y1 is equal to, that is a1 into sin omega t. This is the first equation, first wave. Second equation for the wave y2 is equal to, that is a2 into sin omega t plus phi. This is your equation number 2 for the second wave. But now when this wave y1 and y2 arrive at a point of the medium simultaneously, means what is here? Here a1 and a2 are the amplitudes of the waves, first wave and the second wave, where a1 comma a2 are the amplitudes of the two waves. Amplitude means यह दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है. पहले वेव का एम्पलीट्यूड a1, दूसरा का एम्पलीट्यूड a2. These are the amplitude. Here omega t and omega t plus phi are the phase difference. They are differ in phase by the phase. कितना phi से differ है, पहले का कितना है omega t, दूसरे का कितना है omega t plus phi. So here is the phase difference between the two waves. But here the resultant displacement of this wave is given by the, therefore the resultant displacement is given by कितना होगा, y is equal to y1 plus y2. Means we adding here equation 1 and equation 2. Therefore y is equal to y1 plus y2. So here adding here equation 1 and equation 2, you will get putting here the value. y1 is equal to what value, a1 into sin omega t plus a2 into sin omega t plus phi.
प्लस बी क्या होगा, करिए सॉल्व। मीन a2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई होगा क्या सर, a2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कितना होगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये होगा। अब ये क्या करना पड़ेगा मुझे, therefore करिए इसको a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ये क्या होगा a1 इंटू साइन ओमेगा t प्लस a2 ये साइन ओमेगा t cos फाई प्लस a2 इंटू cos ओमेगा t इंटू साइन फाई। सॉल्व किया मैंने ब्रैकेट को। अब क्या होगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी, क्या करिए कॉमन निकालिए, therefore क्या होता है a1 प्लस a2 cos फाई, क्या निकाला बाहर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है प्लस अब इधर देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा a2 cos ओमेगा t sin फाई, a2 into cos ओमेगा t into sin फाई। अब क्या करते हैं, ये जो है पुट यहाँ सब्स्टिट्यूशन पुट a1 प्लस a2 cos ओमेगा नहीं cos फाई इज इक्वल टू क्या करते हैं, यहाँ पे ओमेगा टी है क्या लिखते हैं cos थीटा लेते हैं cos थीटा, एंड जो बचता है यहाँ पे क्या बचता है a2 cos ओमेगा t इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करता मैं दोनों सब्स्टिट्यूशन ही है, मींस a2 cos ओमेगा t इज इक्वल टू क्या करता मैं sin cos थीटा cos में sin थीटा आता हे सब्स्टिट्यूट केल्यानंतर हे इक्वेशन काय होते बघा, सो हियर दिस इक्वेशन विल बिकम्स a1 plus a2 cos ओमेगा फाई इज इक्वल टू कितना आया cos थीटा, देयरफॉर दिस इज cos थीटा इनटू sin ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t, a2 cos ओमेगा t इज इक्वल टू sin थीटा मींस sin थीटा इनटू sin फाई। अब ये क्या करिए sin थीटा cos ओमेगा t, यहाँ पे sin का एंगल कितना बनना चाहिए sin थीटा cos ओमेगा t, यहाँ पे आ जाइए cos ओमेगा t बिकॉज़ दिस सब्स्टिट्यूशन इज cos ओमेगा t, ठीक है ये cos ओमेगा t में ओमेगा t है, मींस ये देखिए cos थीटा cos ओमेगा t sin ओमेगा t sin थीटा, मींस क्या होता है sin a into sin b sin a into cos b प्लस cos a into sin b, मींस ये क्या होगा कि ये देखा आपको क्या मींस sin ओमेगा t प्लस थीटा, sin ओमेगा t प्लस थीटा। बट लेकिन इसका क्या होगा यहाँ पे अगर मैं ये जोड़ दूं तो ये क्या होगा ये होगा, ये यानी कि क्या होगा यहाँ पे भी a cos ओमेगा t, यहाँ पे ये cos ओमेगा t, यहाँ पे a sin, और ये क्या निकला बाहर मींस ये sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब ये क्या देगा मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देगा, क्या देगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो हियर y इज इक्वल टू हर इक्वेशन y is equal to a into sin omega t, means I can write this equation also in another form, therefore y is equal to a into sin of omega t plus theta. So this is the new equation, y is equal to a sin omega t plus theta, and this a is the resultant amplitude of the two waves, that is y1 and y2. So here in order to find the resultant amplitude a, means here squaring and adding equation number 1, these are the equation substitution, this is equation number 3, this is equation number 4, means adding
and squaring the equation here, for you will get here the amplitude, resultant amplitude. So here squaring and adding equation 3 and 4 करिए. इक्वेशन 3 का मींस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ये प्लस मींस पहले को टर्म लेना है क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस चौथा इक्वेशन a स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा sin ओमेगा t cos थीटा sin ओमेगा t. यहाँ पे sin हाई ये क्या चाहिए sin थीटा cos ओमेगा t sin थीटा बराबर है. और ये क्या होगा sin स्क्वायर थीटा. ठीक है करेक्शन कर लीजिएगा. a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये साइड इज इक्वल टू ये साइड मींस a1 स्क्वायर प्लस अब ये कोई भी ब्रैकेट में लिखते हैं a1 प्लस a2 cos phi स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है ये a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi. अब ये सॉल्व करने के बाद क्या होता है a स्क्वायर बाहर ब्रैकेट में क्या बचता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. ये तो दोनों हो जाएगा. देखो ये क्या बचता है ये आ जाएगा ब्रैकेट में क्या a1 स्क्वायर प्लस twice a1 into a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर ये बन जाता है. ये क्या कितना बन जाता है 1 बन जाएगा मींस देयरफॉर ये ऐसा जाएगा ये ऐसा. अब ये स्क्वायरिंग के बाद कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद से पहले ऐसा जाएगा. दूसरी स्टेप में इसके बाद क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा मींस यू कैन राइट हियर द a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. देयरफॉर यहां पे a इज इक्वल टू मींस टेकिंग स्क्वायर रूट हियर यू कैन राइट a1 स्क्वायर प्लस twice a1 into a2 cos phi plus a2 square. So this is the resultant amplitude of the given wave. This after superposition of the waves. So here a is equal to under root of a1 square plus twice a1 plus into a2 into a2 cos phi plus a2 square. So this is the resultant amplitude of the two waves after the superposition of the two waves. So now here listen carefully. There are some special cases when the angle phi is equal to 0 or is equal to the pi degree or is equal to the 180 degree. So there will be changes in the amplitude of the resultant wave. So you can easily find here the amplitude of the given wave. Special cases. Case 1 क्या केस 1. अब ये एंगल जो है phi is equal to 0. अब phi 0 होने के बाद क्या होगा then रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा then ये is equal to क्या होगा अंडर रूट ऑफ क्या है a1 स्क्वायर लिसन केयरफुली a1 स्क्वायर प्लस cos phi to 0 cos phi 0 means 1 means pi is a1 a2 pi is a1 into a2 plus a2 square. ओके अब ये सॉल्व करने के बाद कितना आता है काय मींस दिस इज a1 स्क्वायर a1 plus a2 स्क्वायर मींस ये क्या बनता है x plus y स्क्वायर ऐसे बनता है ये फॉर्म मींस ये बन जाएगा आपका कैसे a1 plus a2 पर लेकिन टाइम में ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर रूट में ऐसे
अब ये कितना आ जाएगा a1 प्लस a, और ये यहाँ पे क्या है a1 इज इक्वल टू a2 है, कितना बन जाएगा ट्वाइस a1 बन जाएगा। दोनों अगर सेम है तो कितना हो जाएगा ट्वाइस a। देन नंबर 2 केस 2 क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एंगल जो है फाई इक्वल टू 0 के बदले कितना लिया अपन पाई लिख लेते हैं 180 है ना, और 180 मींस ये बन जाएगा आपका ये इक्वल टू वन वैल्यू a1 ये कितना होगा पाई मींस 180 कितना -1 मींस ये बन जाएगा आपका कितना मींस a1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 इनटू a2 और ये a1 के बदले a2 स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ दैट इज a1 माइनस a2 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर ये आ जाएगा। और केस 3 में क्या आएगा कि यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना पाई बाय 2 लेते हैं मींस 90 डिग्री का एंगल लेते हैं मींस cos ऑफ 90 डिग्री कितना होता है 0, ये तो सर्वाइव नहीं होगा। देयरफॉर इन दैट केस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना होगा a1 स्क्वायर प्लस cos कितना होता है ये cos पाई बाय 2 0 मींस ये टर्म तो आएगी नहीं मींस ये कितना होगा a2 स्क्वायर। अब ये कितना बचता है अगर ये a1 इक्वल टू a2 है या नहीं है इसके मुताबिक ये होगा। और यहाँ पे अगर a1 इक्वल टू a2 दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या होगा a1 इक्वल टू a2 का मिलेगा मींस अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर मींस ये भी हो जाएगा a1 स्क्वायर मींस कितना होगा ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर मींस कितना हो जाएगा √2 इनटू a1। तो फिर ये ऐसे बन जाता है √2 इनटू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर दोनों का आंसर सेम है कितना है ये है कितना होगा a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू अगर ये लेते हैं मान के लेते हैं ये लेते हैं a स्क्वायर 2a स्क्वायर का ये 2a स्क्वायर का ये √2 का ये। तो these are the different cases of the resultant amplitude when the two waves in the medium arrive at a point of the medium simultaneously, then each wave produces its own displacement, then you will get the resultant amplitude in this way. So listen carefully, try to understand, try to solve this and take care the all expressions in your mind. Thank you so much.